हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं टेम्पर के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। एंड इसका हमने कोर्ट सीन देखा है, वो बहुत ही जबरदस्त था। उसके बाद हम दोनों डिस्कशन शुरू भी कर रहे थे, क्या कमाल का कोर्ट सीन था, किस तरीके से उसके अंदर मतलब वहाँ पे वो जवाब दिया गया था। ऐसी चीज़ें बोली गई थी जो नॉर्मली आपको प्राउड करनी चाहिए, जैसे कि भाई मेरा भारत महान और इस तरीके से, लेकिन वो आपको हर्ट कर रही थी बिकॉज वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी कि लाइक ये हालत है हमारे देश की और ये ऐसी इस तरीके से यहाँ पे वुमेन को ट्रीट किया जाता है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जेल चले गए, उसके बाद का क्लाइमैक्स सीन है कि क्या होता है और किस तरीके से होता है, तो वो देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यस, लास्ट सीन कोर्ट सीन जो था काफी इम्प्रेसिंग था, क्योंकि उन्होंने जो स्पीच दी थी और फिर जो जजमेंट आया था उससे लाइक वी ऑल वर शॉक्ड के ऐसे जजमेंट के लिए इतना कुछ करना पड़ा। बट देन आई थॉट कि ओके यही होगा, शायद क्लाइमेक्स यही होगा एंड। बट उसके बाद अब क्लाइमेक्स तो अब देखने वाले, तो आई एम ईगर टू नो कि आगे और क्या होने वाला है। लाइक पनिशमेंट तो सुना दी गई थी, तो अब क्या बचा है, तो देखते कि इस सीन में क्या होने वाला है। और ऊपर से जज ने तो यहाँ पे सबको फांसी की सजा दी है, तो एनटीआर को मेरे को नहीं लगता जूनियर एनटीआर को यहाँ पे फांसी की सजा होगी। तो वो कैसे बचते हैं, क्या करते हैं, तो देखने लायक हो। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। దేశంలో సంచలనాత్మక తీర్పు. For the ఒక్క first రోజులో time. ఉరికంబం ఎక్కబోతున్న నిందితులు ఇంకో 10 గంటల్లో భారత కాలమాన ప్రకారం ఉదయం 5:30 ఐదుగురిని ఉరితీయడం జరుగుతుంది. काजल वर्ग भी देखा तो गलत ही हो रहा है उसके साथ। ఎన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో ఆడవాళ్ళందరూ ఆ దుర్మార్గుల చావు కోసం ఎదురు చూస్తూ టీవీలో కతుక్కుపోయారు. ये वैसे कितनी बड़ी न्यूज़ हुआ एक्चुअली। చివరిసారిగా మీకు ఎలాంటి భోజనాలు కావాలో చెప్పండి. ఏంటి భోజనాలా? ఓ పక్కన చావపోతుంటే భోజనాలా? అడు అడుగు అడిగి పెట్టండి, వెళ్ళి తింటాడు. నాకు పప్పు, నెయ్యి, ఆవకాయ, గుత్తొంకాయ కూర, వీటితో పాటు కంపల్సరీగా సాంబారు అప్పడం కావాలని దయ అడిగాడు. మిగతా నలుగురు वैसे होता है कि जब भी ऐसे डेथ सेंटेंस होता है उससे पहले बहुत अच्छा खिलाया ఇంకా जाता है। గంట 15 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది. ओनली 125 minutes left। कैसे बनाया गया ना, सब देख पा रहे हैं। अलग इंटेंसिटी है। హలో, ఏంటి మూర్తి గారు, ఏం జరుగుతుంది? నేను అమ్మకి బాలేదని హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడే టీవీ చూశాను. నేను ఉరితీయడం ఏంటి? ఏం చెప్పమంటారమ్మా, సిడి పోయిందని మీ దీప్తికి న్యాయం చేయటం కోసం ఆ నా కొడుకులు ఎక్కడ తప్పించుకుంటారో అని తను ఎత్తి మీద వేసుకున్నాడు. सबसे पहले ये स्टार्ट तो नहीं। वहां से होनी चाहिए। అయ్యో, मुझे लगता है ये लड़की शायद कुछ बचा हाँ, लेगी। कुछ बचा ले। నా దగ్గర ఇంకో కాపీ ఉంది. ओह, ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది? I had a copy. ఈ కేసుకి సంబంధించి ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడానికి దీప్తి వాళ్ళ అక్క న్యూయార్క్ నుండి లైవ్ లో ఉన్నారు. फाइनली। पर लेकिन ये बात एनटीआर तक कैसे पहुंचेगी? वही ఈ నేరంతో దయాకి ఏ సంబంధం లేదు. నా చెల్లిని చంపిందా నలుగురే. నా దగ్గర సీడీ ఉంది. ప్లీజ్ అర్జెంట్గా టెలికాస్ట్ చేయండి ప్లీజ్. तो अभी बट इन्हें तो पर वही रोकना वही तो चाहिए। वही कौन वो रोकेगा कौन? ओह माय गॉड। ఆ నలుగురిని వదిలేసినా పర్లేదు, మా అన్నని మాత్రం చంపొద్దు. अब उनको अपने ब्रदर की है। చేయలేని త్యాగం చేస్తున్నాడు. జడ్జి గారండి, జడ్జి గారు! आया। సార్ సార్ దయా, నీ ఊరిని ఆపమని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. वाह, फाइनली ఈ నేరం నువ్వు చేయలేదా? టీవీలో సీడీ మొత్తం టెలికాస్ట్ అవుతుందంట. సరే ఇప్పుడు ఆ సీడీ సంగతి నాకు తెలీదు. ఊరాపమని చెప్పింది నాదేనా లేకపోతే అందరిదినా? నీ ఒక్కడిదే. ओनली योर्स। చంపేస్తారా? अबे नहीं, फायर कर दिया। చంపేస్తారా? సార్, ఆ పిల్లకి 40 రోజులు నరకం చూపించేశారు ఈ ఎదవలు. 2 నిమిషాలు ఉరితో నా కొడుకులు చెప్పదు. ఒక్క 10 నిమిషాలు కట్లు పెట్టారు, చూడండి ఏం జరుగుతుందో. ఇప్పుడు సార్
ఏంటి సార్ మీరు ఎలాగైనా 10 मिनट के लिए छोड़ दो मेरे को। ఒక్క 10 నిమిషాలు నాకు వదలండి సార్ వదలండి రా. చచ్చిపోయే ముందు వాడు చంపి మరి చేస్తాం ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు పెట్ అయిపోతానా పుస్తకంలో రాయొద్దు ఆడు గన్ను పేల్చలేదు మన పోలీసుడికి బుల్లెట్ తగలలేదు మీరు నా కట్లిప్పలేదు 4 గోళ్ల మధ్యలోనే ఉండిపోతే మ్యాటర్ నా మాటని కట్లిపండి సార్ 10 నిమిషాలు అంతకంటే ఎక్కువ వాడను ఈ నా కొడుకులకి అంత అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు సార్ సార్ और इंडियन तो फांसी लगानी है तो अभी मारना इतना मारना है वही वो कर रहे हैं खोल दिया और उन चारों को भी वो छोड़ दिया करो 4 on 1 या 1 और 4 जो भी करना चाहते हो ये कहीं ना कहीं एक सही एंड है नहीं हाँ मैं वही सोच रही थी अभी वाह क्या स्पीड में है ना उसको फांसी वैसे ही लग रही है योर ब्रदर्स ओह अभी इनको अपना भाई याद आ रहा है जोरदार ये एक फाइट सीन ऐसा है जिसमें गूगल को बुरा नहीं लग रहा है उल्टा बट मैं तो सच्ची में भी ऐसा करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ माय गॉड तड़पाया है उन लोगों को देखना किस तरीके से ये सीन दिखा रहे हैं ना बिल्कुल नहीं दिखा रहा ये WWE में एक हैरी ना सेल मैच होता है ना वैसा मैच लग रहा है अब देखो वो लोग ये देख रहे हैं कि उनका एक और भाई मर गया उससे अब वो दूसरा कहाँ रह गया उसको पकड़ लिया है చూడు इट इज रॉन्ग పేరు దయ నాకు లేందే అది దా దా के नीचे आने तो गए తమ్ముడు అనవసరంతో చంపేస్తా అన్ని చంపేస్తా అన్నా कैसे तू आगे भाग रहा है बच के आई विल किल हिम कैसे बच गए Literally. उनके मेन वाले को लास्ट में मारेगा अब वो लास्ट मेन वाला आदमी बचा जोरदार सीन है यार फुल डिजर्विंग खुद फांसी के मार जा रहा है ना हाँ तो कह रहा है वो ठीक है एक बार के लिए यहाँ नहीं मर सकता मैं वाह यकी फटती है लोगों की और हाँ ये खोलना भी पड़ता है वो खुद ही खोल दिया माय गॉड जोरदार उसके कंपैरिजन में कभी कुछ नहीं हो सकता लेकिन ये है कि एक जस्टिस है काइंड ऑफ एंड वो एनटीआर का चेहरा की उस 10 मिनट से पहले मैंने कर दिया 5 मिनट ఇంకా 5 నిమిషాలు బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇలాంటోళ్ళి జైల్లో ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి దీప్తిని చంపిన ఆ నలుగురిని क्या अमेजिंग क्लाइमेक्स था इस क्लाइमेक्स में ना लोगों का गुस्सा बताया गया है मतलब जो लोग एक्चुअली में सोचते हैं ना कि इन लोगों के साथ ना ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए वो इस मूवी में दिखाई गई है और इसलिए ये क्लाइमेक्स और इंटरेस्टिंग बन गया बट बीच बीच में मैं सीन खत्म होने के बाद यही बात कर रही थी कि बीच बीच में वो जो लड़की की जो वो बता रहे थे ना सीन्स वो लिटरली मुझसे नहीं देखे जा रहे थे इट्स लाइक कि छोटे से सीन बताए गए थे बट वो
उतना देख के भी रोना आ जाता है, सोच के ही रोना आ जाता है। बट इनके साथ जो पनिशमेंट हुई ना, लाइक एंड में तो वो खुद ही फांसी चढ़ गया, बट इन्हें जिस तरीके से मारा ना तड़पा के, वही ये डिजर्व करते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि लाइक इंडिया में क्यों ऐसा नहीं होता कि ऐसे ना मारे बट एटलीस्ट पनिशमेंट तो जल्दी से जल्दी दे दे, बट वो भी नहीं होता। बट इस मूवी में वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ऐसा होना चाहिए इनके साथ, इन्हें भी गंदी तरीके से मारना चाहिए और तब जाके उसके साथ जस्टिस हो सकती है, मतलब होगी। बट वो पेन तो ऑफ कोर्स कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ जस्टिस तो हो। बट ये मूवी में काफी अच्छे से बताया गया ये सब। एंड मेनली यही है कि इंडिया में तो इस तरीके से कभी होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत लंबा खींच देते हैं। यहाँ पे वही है कि लाइक वो फांसी उनको मिलने वाली थी तो वो फांसी एक झटपट हो जाता है कि लाइक हो गया हाँ। खत्म और उसके बाद फिर फिनिश। बट यहाँ पे जूनियर एनटीआर उनको तड़पाना चाहते थे, उनको फील करना चाहते थे, उनको करवाया भी। लाइक एक एक को मारा ना तो हर एक को वो फील हुआ, जो जैसे पहले को मारा तो बाकी 3 को फील हुआ कि वो बिछड़ना, एक अपना दोस्त बिछड़ जाना, फिर वो लोग रोने लग गए, चीखने लग गए, फिर दूसरा मारा तो बाकी दोनों चीखने लग गए। वो जो जब रो रहे थे, तड़प रहे थे, तो लिटरली उनमें ह्यूमैनिटी होती भी है कि वो अपने भाइयों के लिए ऐसे तड़प रहे हैं। और वही उनके जब वो एक ऊपर था तो नीचे वाले के जब पैर पे मारे थे तो ऊपर वाला चीख रहा था, और फिर लास्ट वाले को मारा तब भी ऐसे इस तरीके से। एंड जब लास्ट वाला किस तरीके से खुद फांसी की तरफ भाग रहा था ना, तो वो एक देखने लायक था कि लाइक एक फांसी देना एक अलग चीज होती है कि लाइक उसको चढ़ाना, और वहां पे वो खुद जाके चढ़ रहा है कि भाई मेरे को इस हेल से बचाओ और मैं यहाँ से बचना चाहता हूँ। वो उन्होंने वो हालत कर दी थी, तो वैसा वो डिजर्विंग लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। बट हाँ ये ऑफकोर्स ये फिक्शनल चीजें ही हैं, ऐसा रियल में हमने कभी होता हुआ देखा नहीं है। ऐसे रियल में फांसी तक नहीं होती तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो बस एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा अच्छा होने लग जाए एंड लिटरली ये सब चीजें खत्म हो तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी आप लोग को सीन कैसा लगा जरूर बताएगा, और इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।